Good morning, everyone. May I please ask the participants attending the webinar to keep their mics on mute? Is it time to start? Yes. Shall we start, ma'am? It's 10:30. Hello, ma'am? मैम का ऑडियो म्यूट हो गया क्या? मैं देखता हूँ, एक मिनट। Hello. Hello, ma'am. It's 10:30. About time to start. Yes. Okay. Okay. Again, like yesterday, good morning, everyone. I wish to pray to Ma Saraswati. So, Varde Veena Vadini Varde. Yesterday, good morning, everyone. Before I start something, good morning, everyone. Yesterday, we had a wonderful session. And today, too, I hope to continue the tradition. May I take the proud privilege of welcoming you all once again. I also wish to extend a warm welcome to Shri Pankaj Agrawal ji, CA. And for those who have joined afresh today, let me introduce him to you all. A leading practicing chartered accountant, a prolific writer and contributor, and also a spiritual and motivational speaker. I wish to welcome our dynamic principal, Dr. Neerja Singh, an academician by profession and a scholar following the doctrine of simple living, high thinking. Ma'am, kindly grace us with few words of encouragement. Dr. Neerja Singh. Thank you, Jyoti, for inviting me. मैं डॉक्टर नीरजा सिंह आप सभी का वो पहले नमस्कार करती हूँ, शुभ प्रभात करती हूँ और इस वेबिनार के द्वितीय चरण में सेकेंड डे ऑफ द वेबिनार जिसमें कि हम बात करेंगे श्री पंकज अग्रवाल जी के साथ मिलकर सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ एनहांसमेंट की। कल जो वेबिनार का पहला दिन था, इट वाज ग्रेट। मैं श्री पंकज अग्रवाल जी का हृदय से स्वागत करती हूँ और उनके कल के वक्तव्य जो भी उन्होंने कल हम लोगों को बातें बताई, हम सभी को जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको, वो निश्चय ही उनके जीवन में कुछ आशा किरण ले आई होंगी, क्योंकि समय सबसे बड़ा धन है और समय का मैनेजमेंट प्रबंधन डॉक्टर अग्रवाल जी ने कल हम सबको बताया। सीए होने के नाते एक प्रोफेशन से सीए होने के नाते आप क्षण क्षण और कण कण के हिसाब को का जितना विश्लेषण, जितना एनालिसिस कर सकते हैं, उसको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही विचार के साथ आपने कल हम सभी को बताया। मैं पुनः आपका आभार देती हूँ। और आज ये जो सेकंड सेशन है, सेकंड डे है, इसमें
जो विषय रखा गया है वह है सेल्फ असेसमेंट, अपने बारे में सोचना, अपने को आगे बढ़ाना। तो अग्रवाल साहब, कल तो आपने इसका पहला मंत्र बता ही दिया है कि समय का प्रबंधन। जो व्यक्ति समय का प्रबंधन कर ले जाएगा वो तो आगे बढ़ ही गया, उसने तो प्रबंध कर ही लिया अपने जीवन के क्षण क्षण का। जब क्षण क्षण का प्रबंधन हो गया है तो कण कण अपने आप प्रबंधित हो जाएगा। और उसमें आज आप उसके कुछ गुण बताएंगे कि किस तरह से वी एनहांस आवरसेल्फ। उस गुण को हम सभी हृदय से सुनेंगे, समझेंगे। और पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने सभी पार्टिसिपेंट का, जो हमारे देश के विभिन्न कोनों से, from every nook and corner of the country, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। I welcome you all for your virtual presence with us and in this webinar. Okay, thank you. Thank you again. Jyoti? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for blessing us, for briefing us about yesterday, and for encouraging us to move on today. There is a saying that there are obviously two educations. One teaches us how to make a living, and the other how to live. As academicians and scholars, learning how to count is fine, but understanding what counts is the best. Yesterday, we learned a very important aspect of life skill, that is time management. And today, let us put that management to practice by understanding as to how to enhance and enrich our personality, how to value our selfie. I request Shri Agrawal Sahab to enlighten us on this subject. Sir. Dr. Pankaj Agrawal, please. Thank you, Principal Madam Dr. Neerja Singh ji and HOD Madam Jyoti Bhargav ji for giving me this opportunity to conduct 2 days webinar session, first on time management and today on value your selfie. Before I start, as we have given task to our participants yesterday, will somebody like to give some synopsis or to some takeaway from yesterday's talk? If he is somebody is willing, he may just unmute himself and just speak something, a few words about yesterday. What were the takeaways from yesterday's talk? If somebody is should volunteer and come forward. Just unmute yourself and start speaking. This is webinar, so on a screen I will not be able to take name or to call anybody, call someone. On your own, just come forward. Anyone? What were the takeaways from yesterday's? Yes, Dr. Barrister. Sir, time, as per you, time is very precious for all. But some incidents show, past incidents show, and articles I have read earlier, कि बहुत सारे सर जो मजदूर और मजबूर है वो अपने घरों के लिए इतने बेचैन हो, लेकिन फिर एक दूसरा कंडीशंस देखते हैं कि जो घरों में है वहां पर जो है हम कह रहे हैं कि चलो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं। देन एक हम वेस्टर्न कंट्री में देख रहे हैं कि ये जो हम टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैमिली के केसेस भी प्रमोट कर रहा है।
घर में जो डिस्प्यूट्स है वो भी बढ़ा रहा है। ऐसे ही जो मजदूर जाएंगे वो गांव में भी डिस्प्यूट्स क्रिएट करेंगे। इसको मैनेज करने का कुछ सुझाव दे तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए, और कोई लेता हूं इस विषय को, और कोई कुछ कहना चाहेगा? मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना ठीक से? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं इसमें जस्ट 1 मिनट ऑफ योर टाइम। कल ये एक्सरसाइज हम लोगों के यहाँ भी हम लोग कर रहे थे कि सेल्फी, आपने हम लोगों को एक होमवर्क दिया था कि सेल्फी का एक्सपेंशन क्या होना चाहिए। तो मेरे पास 2 बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले में आया सेल्फी का S मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, E engage resources, L leverage opportunities, F face your fears, I identify goals, and E enjoy the process। तो बेसिकली इस सेल्फी का जो एक्सप्लेनेशन सामने मेरे समझ आया वो ये आया कि हम स्वयं के सारे चौतरफा चीजों को देखते समझते और उससे जूझते हुए समय बिताएं ताकि अपने गोल्स को प्राप्त कर सकें। एक एज अ टीचर दूसरे मेरे एक कलीग ने भेजा, उसने लिखा S यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन, E इफेक्टिव, L learning by, F fostering use of, I यानी innovative, E यानी educational technologies। तो उनके हिसाब से सेल्फी का मतलब हुआ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन इफेक्टिव लर्निंग बाय फॉस्टरिंग यूज ऑफ इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए सेल्फी का एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसा मुझे समझ आया। बहुत बढ़िया। आगे के सारे एक्सप्लेनेशंस के लिए अब मैं आपको रिक्वेस्ट कर, आप चैट में भी शेयर कर दीजिएगा या बाद में इसको व्हाट्सएप करिएगा सबको, मेरे को तो कर ही दीजिएगा। जी जरूर सर। चलिए, बैरिस्टर साहब का जो प्रश्न था थोड़ा उसका मैं समझता हूँ हट करके है, क्योंकि 2 पहलू लिए। एक तो मजदूरों की बात कही आपने और एक दूसरा पारिवारिक को, जब हम परिवार को समय अधिक दे रहे हैं तो परिवार में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। मैं समझ पाया यही 2 प्रकार के प्रश्न हैं कि जब जाएंगे तो वो, इसका कहीं टाइम उससे लेना देना नहीं है। मुख्य रूप से मुख्य बात यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, एक चीज और चलती है, एक शब्द और है हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम के लिए, पैक्ट। उसका पैक्ट ही प्रॉब्लम है, पैक्ट ही सॉल्यूशन है और पैक्ट ही इवोल्यूशन है। पैक्ट क्या हुआ? परसेप्शन। आज सारी परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। मजदूरों का जो जिस प्रकार का एक वातावरण बना दिया गया, क्योंकि आज की समस्या है ये, आज ये 2 महीने 3 महीने समस्याओं का जो एक स्वरूप जिस प्रकार से हमको दिखाई पड़ रहा है ना, और समस्याएं हर काल में रही हैं। अगर आप उठा के देखोगे महाभारत पुराण सब में हर समय हर प्रकार के सुर असुर हर समय पाए गए हैं। रामायण में तो चौपाई भी आती है कि सुर असुर हर कालखंड में रहे। कभी कहीं किसी का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, कभी किसी का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। परिवारों के अंदर भी अगर समय अधिक देने के कारण अगर टकराव बढ़ रहा है तो उसके पीछे कारण कुछ और है। टाइम मैनेजमेंट के कारण, टाइम मैनेजमेंट का जो कल का हमारा विषय था वो अपने को किस प्रकार से हम सेल्फ इंप्रूव करें कि जो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़े, हमारे समय को हम प्रॉपरली मैनेज करते हुए अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जो हमारे टाइम किलर हैं, टाइम रॉबर्स हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करके हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकें और रोक सकें। कल का मूल विषय ये था। जैसे हमने कहा ना कि प्लान आउट योर वर्क, वर्क आउट योर प्लान। आज की तारीख में हम बिना प्लानिंग के काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। या हम एक स्टूडेंट के रूप में अगर हम स्टूडेंट्स को देखें, साल भर की हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। 365 दिन हम स्टूडेंट हैं, ये हमें भान होना चाहिए। वी आर स्टूडेंट फॉर 365 डेज, जबकि हम स्टूडेंट बनते हैं केवल लास्ट के 2 महीने के, जब एग्जाम आने होते हैं। कई बार 2 महीने भी नहीं बनने होते,
LLB के स्टूडेंट तो जो 22 क्वेश्चंस की बुक आती है, कल एग्जाम है, पहले दिन 22 क्वेश्चंस की बुक लेकर के आएंगे, पढ़ेंगे और एग्जाम दे देंगे। जबकि दे आर सपोज टू बी स्टूडेंट फॉर 365 डेज, दे नीड टू प्लान अकॉर्डिंग टू देयर 365 डेज सिलेबस, 360 डेज। तो कल का जो विषय था थोड़ा सा आपका प्रश्न उससे हटके था, लेकिन जो उसमें भी कहीं ना कहीं उसके हिसाब से जो प्लानिंग और जो उसके जो प्रॉब्लम के रूट कॉज हैं वो कुछ और हैं। मजदूरों की समस्या हो, परिवारों की समस्या हो, उसमें भी जो हमने कहा ना, पैक्ट फॉर द प्रॉब्लम, पैक्ट फॉर द सॉल्यूशन एंड पैक्ट फॉर इवोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है? परसेप्शन, एजम्पशन, कंफ्यूजन एंड टेंशन। पैक्ट जो बनता है, पैक्ट P फॉर परसेप्शन, A फॉर एजम्पशन, परसेप्शन से एजम्पशन बना, एजम्पशन से कंफ्यूजन हुआ और कंफ्यूजन से टेंशन हुआ, और इसी का सॉल्यूशन बनेगा पॉज, कंसर्न और एप्रिशिएशन और टुगेदरनेस। तो ये जो रूट कॉज पे अगर हम नहीं जाएंगे तो हम कहीं की प्रॉब्लम को कहीं से जोड़ेंगे तो हम उसके सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो कल का विषय भी नहीं था वो जो आपने था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बैरिस्टर जी? हाँ, मैं दरअसल समय को ही दे रहा था, इसमें पॉइंट फोकस कर रहा था, केवल समय पे ही था फोकस, कि दोनों जगह हम समय ही दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में आउटपुट जो है वो निगेटिव दिख रहा है। हम ऐसा नहीं है कि हम हर समय जो देते हैं उसमें सब जगह निगेटिव ही आता है, लेकिन मैं इस केसेस में समय हमें वो आउटपुट नहीं दे रहा था उसके रिगार्डिंग। दूसरा सर एक चीज ये है, एक चीज कि हम अच्छे जो हमारे जो एक तरीके से टाइम रोवर्स है उसके लिए हमें, जैसे कि अगर किसी से हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है तो सर उसके लिए हमें क्या वो करना होगा ताकि वो हमारा टाइम रोवर्स ना बन पाए। बैरिस्टर साहब, मैं एक सेकेंड एक विनम्र निवेदन करूंगी कि ये विषय पर हम लोग जरूर चर्चा करें, लेकिन आज का जो हम लोगों का प्रेजेंटेशन है, समय बाध्यता होते हुए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो चलिए बाद में लास्ट में अगर समय होगा तो आपका प्रश्न अग्रवाल साहब, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू विद टुडेज प्रेजेंटेशन। जी, थैंक यू बैरिस्टर साहब। तो आज हम आते हैं, आज के हमारा पहले प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रहा है ना? प्रेजेंटेशन आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू योर सेल्फी। ये टॉपिक क्या है कि आजकल हम लोग जहां भी कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी हैं, दिन भर में कुछ लोगों को इतना क्रेज है, मॉल में जाएंगे, कहीं भी जरा सा भी होगा तुरंत हम अपनी टेढ़े होकर के तुरंत एक सेल्फी खींचेंगे, और सेल्फी खींचने के बाद में फिर हम करते क्या है, सबसे पहले उसको फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। फिर हम शाम होते होते देखेंगे कि उस हमारी सेल्फी को कितने लाइक्स मिले, कितने डिसलाइक्स मिले। क्यों करते हैं हम ऐसा? वाई डू वी डू ऑल दीज थिंग्स? जस्ट टू एग्रेंडाइज अवरसेल्फ, अपने ईगो को पैम्पर करने के लिए, या हमारे को हमें कुछ ना कुछ हम अपने विषय में वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट अवरसेल्फ, तो दैट्स व्हाई वी टेक अवर सेल्फी। इज इट सो और नॉट? बिकॉज आज की तारीख में जब से मोबाइल फोन्स आए हैं हम लोग सेल्फी लेने के लिए बहुत आतुर हो गए हैं, बहुत सेल्फी लेते रहते हैं, हर समय सेल्फी, छोटी छोटी। कुछ लोगों को तो इतना क्रेज होता है, जरा सा भी कुछ होगा, कहीं रेस्टोरेंट में बैठेंगे, कहीं कुछ बैठेंगे, दिन भर में उनके फोन में आप सेल्फी की भरमार देखेंगे। लेकिन सेल्फी को थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड देते हुए उसको हम लोग आज अपने सेल्फ एस्टीम थ्रू सेल्फ अवेयरनेस की ओर ले जाते हैं कि कैसे हम अपनी सेल्फ एस्टीम को जागृत करें सेल्फ अवेयरनेस के लिए। तो सेल्फ एस्टीम है क्या? reflects a person's overall subjective emotional evolution of his or her own worth. It is a judgment of oneself as well as an attitude towards the self. Self-esteem synonyms are self-worth, self-respect, self-value, and the key to enhance self-esteem is to build up self-confidence. हम कितनी सेल्फी लगा लें, अगर हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक है, if we are lacking in self confidence or if we lose self confidence, then there is no meaning of putting selfies. There is no meaning for selfies. So first we have to develop self confidence and self esteem. Then only we can perform better in the society. We can be a good citizen even. Then only we can do justice to our living being.
अभी ज्योति मैडम ने सेल्फी के बहुत सारे हमको नए नए एक्सपेंशन दिए, जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एंगेज रिसोर्सेज, लीवरेज अपॉर्चुनिटी, फियर्स, आइडेंटिफाई गोल, एंजॉय द प्रोसेस। एक और उन्होंने दिया सेल्फ रिफ्लेक्शन, लर्निंग, fostering innovative educational technology, etc. We can develop so many things with this acronym of selfie. But what I am going to deal with is selfie as stand for self awareness. जैसे हनुमान जी के बारे में भी हमें मालूम है ना, जब वो समुद्र के तट पर पहुंच गए और ये प्रश्न खड़ा हुआ कि समुद्र को कौन लांघ सकता है। उनमें क्षमता थी, लेकिन उनको भान नहीं था कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं उसको लांघ सकूं। उनकी क्षमता को जगाना पड़ा। जामवन जी ने जब कहा कि का चुप साध रहे हो बलवाना, तब उनके अंदर से वो क्षमता जागृत हुई और वो 100 योजन का जो समुद्र था उसको लांघने में सक्षम हुए। तो बहुत बार हमें अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी होती है, अपने अंदर की जो क्षमता होती है, वो भी हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते। तो हमें उसके बारे में भी अवेयर होना पड़ता है। तो पहला सूत्र है उसका सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है एम्पावरिंग वन सेल्फ। हम सेल्फ अवेयर हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी कुछ हमारे अंदर कमियां होंगी, रिसोर्सेज की कमी होगी, हमारे अंदर कुछ और रिक्वायरमेंट की कमी होगी। तो उसके लिए हमें अपने आप को एम्पावर करना। जो भी हमारे मैन पावर जुटानी है तो मैन पावर जुटाना, रिसोर्सेज जुटाने हैं तो रिसोर्सेज जुटाना। देन कम्स एल। एल इज लव व्हाट यू डू, स्वधर्म जिसको कहते हैं हिंदी में। आगे ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा डील करेंगे। F, faith and knowledge. Then I integrate BMI. What is this BMI? What is this BMI? BMI is body, mind and intellect. क्या हम शरीर मात्र हैं, क्या हम मन हैं, क्या हम केवल बुद्धि हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं हमारी एक जो पर्सनैलिटी बनती है वो तीनों के इंटीग्रेशन से बनती है, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। लेकिन जब ये इंटीग्रेट नहीं होती, पर्सनैलिटी हमारी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तब हमारे लिए सारी समस्याएं खड़ी होनी चाहिए। जैसे हमारा मन कर रहा है मिठाई खाने का, आजकल कोरोना काल है, मिठाई मिल नहीं रही। दूसरी तरफ शरीर असक्त है, बीमार है, मिठाई खा नहीं सकते, लेकिन मिठाई खानी है, डायबिटीज है। तो और बुद्धि कहती है कि नहीं, तुम खाओगे तो तुम्हारे लिए हित में नहीं है। अब किसकी चलेगी उस समय? बॉडी की चलेगी, माइंड की चलेगी या इंटेलेक्ट की चलेगी? इसीलिए तीनों के जो काम बताए गए, बॉडी का काम है BMI, PFT, OET। बॉडी का मतलब बॉडी परसीव्स ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे 5 जो कहे गए 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श इंद्री, जिह्वा, गंध, ये सब इस प्रकार की जो 5 हैं, उनके द्वारा हम जो बाहर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स जिनके संपर्क में हम आते हैं, वो हमारा काम करते हैं। वो हमारे माइंड को स्टिमुली देते हैं, फिर इंटेलेक्ट उनके ऊपर निर्णय लेता है। माइंड फील्स इमोशंस, इंटेलेक्ट थिंक्स थॉट्स। तो तीनों को मिलकर के जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है, BMI, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। और इस बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट के जरिए हम जो है, जब ये इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी हमारी बनती है, तभी हम एक प्रकार से सही मायने में फंक्शन कर पाते हैं। हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए ये भी जरूरी है कि हमारा BMI, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, तीनों इंटीग्रेटेड हो। देन E इज एंडलेस ईगो टू ईगोलेसेंट। शब्दों का फेर फेर है, उलट गया। जब हम बहुत अहम में भरे होते हैं, एंडलेस ईगो टू ईगोलेसेंट, तो जितनी हमारी ईगो कम होती जाएगी उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। Let us do an activity. This is homework. For self-awareness, we can make a chart like this. On one column, we may put our strengths, and on another column, we may put our weaknesses to identify, to judge our own personality. Where do we stand? What are our strengths and what are our weaknesses? Now, let us see what happens when we focus on our strengths, or when we recognize our weakness. To overcome that, developing of strengths makes us say JDI, just do it.
और जब हम वीकनेस पे डिपेंड करते हैं तो वो कहते हैं जस्ट ड्रॉप इट, चलो छोड़ो, कौन करेगा, अपने को जब हम कमजोर मानते हैं। जब हम अपने को स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं तो हम अपनी एडमायर करते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये काम करने की क्षमता है, ये कुव्वत है, दिस आई कैन डू इट। देन weaknesses हैं, then we should be ready to accept the weaknesses. Maybe someone gets very angry, get irritated for little things. He should be able to accept it. That okay, this is my weakness. Over a period, when one accepts his weaknesses, then over a period he can also overcome them. First, one need to recognize his weaknesses, then only he can overcome them. The most of the time we do not recognize our weaknesses, so we are not able to overcome it. Similarly, accept compliments, analyze criticism. We must politely accept compliments which we get in life, and similarly, on the other hand, if we get criticized, then also we should accept it, we should analyze it. There may be some truth in it, in the criticism, and if there is no truth, we should ignore. But we should not altogether ignore or avoid criticism. We must analyze that what is the criticism, and we should take it positively, and we should analyze and accept it. Similarly, we should also appreciate the strengths in others, and for our weaknesses, we must admit that no one is perfect. We do have weaknesses, there is no harm in it. So, I have many strengths, so I am not a weak. I have some weaknesses, but I am not weak. Again, I will repeat it. I have many strengths, so I am not weak. I have some weaknesses, but I am not weak. Because we should focus on strengths. Spotlight on strengths, work on weaknesses. Gradually, so that we can overcome our weaknesses, we can gradually go ahead. When we focus on our weaknesses, we keep in our mind in our weaknesses. And there is one full seminar on emotional transformation. Why one get angry? Take for example, why one get angry? If we put in a mathematical formula, then we will find that when your desire is denied, not fulfilled, then you get angry. Or when you get attached to something, and then it is snatched or it is taken away or something happens, then you get angry. For example, जब कोई नई मोटरसाइकिल आती है तो जरा सी भी उस पर खरोच लगती है तो बहुत गुस्सा आती है, और 1 साल के बाद उसी स्कूटर पर कितनी ही खरोच लग जाए हमें गुस्सा नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब नई स्कूटर आती है तो उस समय हमारा जो उसके साथ अटैचमेंट होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो 1 साल के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है गुस्से का। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर। इमोशनल की जब बात चली, अगर हमें पिक्चर जाने की बहुत डिजायर है, किसी ने मना कर दिया, उस समय में बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन अगर हमारी डिजायर उस समय उस पिक्चर के लिए हमारा अटैचमेंट उतना तीव्र नहीं है तो शायद किसी ने मना किया तो चलो कोई बात नहीं जाते। तो कहने का मतलब यह है कि वीकनेसेस को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके कारण को ढूंढना चाहिए कि अगर हमें गुस्सा आता है तो क्यों आता है। किसी चीज के कारण हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसके कारण हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम उस अटैचमेंट को कम करने का प्रयास करें। किसी और कारण से हमारा गुस्सा बढ़ रहा है तो हम उस कारण को ढूंढ करके कारण के निदान करने का प्रयास करें। वो हमारी एक वीकनेसेस को दूर करने में हमें सहायक होगा, व्हेन वी विल वर्क ऑन आवर वीकनेसेस। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम तो ऐसे ही हैं, तो शायद हम अपनी वीकनेसेस को दूर नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वी विल टू हैव टू एक्सेप्ट दैट okay, I have this weakness, I have to get rid of these weaknesses to further improve our strength. That does not mean that we all the time should brood on our weaknesses, but we must keep in mind that okay, this is my weakness and I have to take a vow to get rid of it. Then there are 3 leakages I talked yesterday also. Lack of confidence is mostly self-created.
Nobody else has created. We ourselves have feeling depressed many times. When challenge comes, if we are not able to accept it, it becomes a problem. When we are not able to solve the problem, it becomes crisis. And when it is further not solved or resolved, then it turns into a stress. Three leakages which affect our self-confidence and thereby our self-worth are, for two we discussed, almost three we discussed yesterday. That is, one is regrets of the past, anxieties of the future, and excitement in present. These are the three leakages which affect our self-confidence and thereby our self-worth. We should always remember, whenever, as we listened to Gurudev yesterday, our mind should be where our hands are. We should live in the present, moment to moment, not time to time. Hour by hour nahi, balki moment to moment we should try to live. That's the crux, or that is the empowering oneself. It will empower oneself. Then opportunities must be tapped or created to strengthen our strengths and weaken our weaknesses. I yesterday also told that there is a saying, a quote by my Gurudev, which says, opportunity knocks at the door of everyone. Either we are sleeping or we are out. जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती कि हम उसको कैप्चर कर सकें, क्योंकि हमें अपने को उस तरीके से ट्यून अप नहीं किया होता, उस तरीके से पढ़ा नहीं होता. मैं अपने प्रोफेशन की बात बताऊं, बहुत बार लोग कहते हैं कि जब काम आएगा तब हम पढ़ लेंगे. We have to keep ourselves up to date whether we need it today or not. Any information, any law with which we are concerned, whether we need it today or not, we may have a client with us or not, but we have to keep it up to date. We don't know whenever an opportunity may come to us. So opportunity must be tapped or created to strengthen our strength and weaken our weaknesses. Second thing also, we should also try to convert the negativity into positivity. Presently, I am not going much into it. There is a one statement. Instead of saying poor me, if you say it is up to me. One should not feel others, make others cause. For our weaknesses, we should not blame others also. It is we who are to take control of ourselves. It is we who are to mend ourselves, not others. अगर दूसरे हमारे परेशानी का कारण बनेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते. एक कोट और है कि हमने अपनी सुखियों की कुंजी जो है, चाबी दूसरों की जेब में रखी हुई है. We have put the keys of our happiness in pocket of others. तो जब तक उसकी जेब से हम वो चाबी नहीं निकालेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते. तो इसलिए हमें पॉजिटिव बनना है. जो भी कहते हैं, कहने में भी वही चीज हमें पॉजिटिव होकर के कहनी है. Stop being a victim of circumstances but become a master. दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. इट इज अ सिचुएशन. जैसे बैरिस्टर साहब ने अभी जिक्र किया, आज ये 2 महीने से लॉकडाउन है. ये सिचुएशन है या प्रॉब्लम है? इट इज अप टू अस हाउ वी लुक एट इट. इट इज अ सिचुएशन which has been given to us that there will be a lockdown for 2 months over a period. It is up to us. We are enjoying, we are using this opportunity by using webinars, by connecting people all over the country, all over the world, which was not possible physically. We are able to listen to the speaker of eminence from whom we could not have heard otherwise. At home we are developing our skills, our inherent strengths. So this we can say that it's an opportunity, instead of saying that it is a situation or it's a problem. But for some, it may be a problem also. If we do not see anything, there is always a situation. If we have a capacity to handle it, if we have a capacity to face it, it is not a problem. हम बाजार में गए, हमारी जेब में पैसे हैं, खाने का सामान मिल रहा है, भूख लगी है, वो समस्या प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हमारे पास साधन नहीं है, तभी वो समस्या बन जाती है. लेकिन जो भी सिचुएशन हमें लाइफ में मिलती है,
हमारा एटीट्यूड क्या चाहिए कि हम पॉजिटिवली उसको जज करें कि ये विक्टिम, ये सर्कमस्टांसेस आई है, what best I can do in the present circumstances. If we can do something for it, we should do it. If we are not able to do it, leave it. Leave it for whom who has given these circumstances. So for oneself, we should stop being a victim of circumstances, but become a master. Otherwise, what will happen? All the time we will be brooding, all whole day we will be weeping. क्या हो गया, 2 महीने हो गए, पता नहीं कब खुलेगा लॉकडाउन, 2 महीने हो गए घर में रहते रहते, अब तो बहुत हो गया, बोर हो रहे हैं, क्या करेंगे? लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है इस परिस्थिति को बदलना, तो हमें एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करना है तो हंसते हंसते करें। तो लाइफ के अंदर एक एक्सेप्टेंस भी हमारे जीवन में आनी चाहिए। वी शुड नॉट बी विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस बट बिकम ए मास्टर ऑफ इट। Look into the mirror and say, hey, good looking, I am not perfect but fine, but I am fine. There is no one perfect in this world, but we can be fine with ourselves. There is a Gita, in Gita there is a श्लोक, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है ये जीवन के लिए। Lift yourself by yourself, no one else can do it for you। श्लोक है, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। आप खुद ही अपने दुश्मन हैं, खुद ही अपने मित्र हैं, आपको स्वयं अपने प्रयास से ही उठना है। नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू। एक कहानी आती है कि एक आदमी कुएं में गिर गया, तो उससे कह रहा है निकलो निकलो निकलो, कह रहा मैं कैसे निकलूं कैसे निकलूं। दूसरे ने ऊपर से हाथ दिया, नीचे ने कहा उठो, बोले कैसे निकलूं, बोले अपना हाथ तो बढ़ाओ। तो जब तक वो दूसरा व्यक्ति जिसको निकलना है ऊपर वो हाथ नहीं बढ़ाएगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। इसलिए पहला प्रयास तो उसी को करना है जो कुएं में गिरा हुआ है। तो पहला प्रयास तो हमें ही अपने आप को करना है, अपने को एम्पावर करने के लिए, अपने को उठाने के लिए। ये इक्वेशन है, इस पे थोड़ा सा मैं सबका ध्यान चाहूंगा और सबको, कुछ लोग इसमें बोलेंगे भी तो अच्छा लगेगा। मनी इज ए इक्वेशंस हैं कुछ। मनी इज इक्वल टू रेस्पेक्ट, एंगर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, फॉरगिवनेस इज इक्वल टू वीकनेस, ग्रीड इज इक्वल टू मोटिवेशन, फियर इज इक्वल टू नेचुरल, सक्सेस इज इक्वल टू स्ट्रेस, मिस्टेक्स इज इक्वल टू इनएफिशिएंसी। एंड कौन बताएगा हाउ मेनी ऑफ अस एग्री टू दिस इक्वेशन? प्रिंसिपल मैडम भी अनम्यूट करके, मैं अनम्यूट कर देता हूं, उन्होंने किया हुआ है तो वो खुद ही कर पाएंगी अनम्यूट। ज्योति मैडम कुछ बोलेंगी, डॉक्टर गुंजन कुछ बोलेंगी जो दिखाई पड़ रही है मेरे को अभी, डॉक्टर बैरिस्टर कुछ बोलना चाहेंगे इस इक्वेशन पे। कितना एग्री करते हैं और कितना हम लोग इस बारे में? मनी इज इक्वल टू रेस्पेक्ट, एंगर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, फॉरगिवनेस इज इक्वल टू वीकनेस, greed is equal to motivation, fear is equal to natural, success is equal to stress, mistakes is equal to inefficiency. Because in daily life we listen to these type of things, equations, कि मनी पैसे से आदर होता है, गुस्सा जो है आदमी की शक्ति है। यस मैडम। सर जो आपने ये इक्वेशंस दिए हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। मतलब एक पर्सपेक्टिव में देखें तो वो शायद मनी इक्वल्स टू रेस्पेक्ट हो, कुछ का मानना हो सकता है, कुछ लोग ऐसा फॉलो भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग मनी को रेस्पेक्ट, मतलब ये नहीं कहते कि नहीं मनी है तो ही रेस्पेक्ट है, शायद उसके जो वर्ड्स है, जो उसके कर्म है या उसके आचार व्यवहार है, शायद वो रेस्पेक्ट हो जाता है। तो दोनों ही चीजें पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये डिफरेंस करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ओपिनियंस पे। ये सभी चीजों के केसेस में आएगा सर। कोई सक्सेस है तो बहुत कोई खुश होता है और उसको जाहिर करता है, कोई सक्सेस है तो कहते हैं कि उसमें स्ट्रेस आया, शायद उसके लिए उसने बहुत सारे स्ट्रगल किए होंगे इसलिए स्ट्रेस आ गया होगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कोई एक सिंपल एकदम से कह देना तो ये तो नहीं पॉसिबल है सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ प्रिंसिपल मैडम बोलना चाह रही हैं? सर मैं हाँ
हाँ बोलिए, कौन? मंजरी जी बोलिए। जी सर। सर इसमें ये जो आपने बताया है फॉरगिवनेस और वीकनेस, तो क्षमा क्या कमजोर बनाती है, इसका अर्थ ये है क्या? हम डिबेट कर रहे हैं इसको कि ये जो इक्वेशन है किस तरीके से ये हमको इंस्पायर करते हैं, या हमको ऊंचा उठाते हैं, या हमको गिराते हैं ये वीकनेस। क्योंकि कुछ लोगों के ये मानना होता है ना, एक जनरल सोसाइटी का जो परसेप्शन है वो ये रहता है ना कि अगर हम माफ कर देंगे, जैसे घर में ही हम कई बार सुनते हैं कि अब मेहरी नहीं आई या अब हम नहीं हुआ तो अब हमारी कमजोरी समझ के हमारा फायदा उठाने लगेंगे लोग। अच्छा अच्छा, इस अर्थ में है। नहीं तो वैसे तो सर हमारी भारतीय संस्कृति में अभी यही हम कहा आगे, गया है हाँ बात कि सही है, क्षमा। इसीलिए हम इसको, सर इसीलिए हमारी हम, भारतीय संस्कृति में तो यही कहा गया है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बिल्कुल तो सही कह हम रही तो हैं। उसको क्षमा को एक बड़प्पन की वो मानते हैं, इसीलिए निशानी। इसीलिए ये जो हमने ये स्लाइड दिखा रहे हैं, अभी आगे की स्लाइड में ले चलेंगे आपको, कि पहले जी हम लोग इन बातों में कितना हम लोगों को लगता है, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा, ठीक है पर्सन टू पर्सन बात सही है, बट जी, हम सही बात है। जब हम व्यक्ति। हाँ ठीक है सर। जनरल परसेप्शन में बात कर रहे हैं तो हाउ डू वी एग्री टू दिस प्रोपोजिशन? यस Because ठीक है। equation is equal to conviction, and right equation will make a right conviction. First, जी we सर। have to convince ourselves कि are we agree to this formula or not. If we will accept that this is a correct proposition of the society, or if it, then we can not go anywhere. We cannot uplift ourselves. जी सर। हाँ सर क्या? ठीक। हाँ विकास जी बोलिए। हाँ सर, आप कह रहे हैं बड़े पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो किस तरीके से इसको देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मनी की बात है तो आज की सोसाइटी में ये बात सही है कि जिसके पास पैसा होता है उसे रिस्पेक्ट मिलती है। एंगर जहाँ तक है, एंगर स्ट्रेंथ कभी नहीं हो सकता। एंगर से इंसान की जो बुद्धि होती है एक तरीके से हर ली जाती है और वो कुछ सही नहीं कर सकता उसके साथ। जहाँ तक फॉरगिवनेस की बात है तो ये वीकनेस कैसे हो सकती है? जो माफी देने की बात है उससे वो आपकी वीकनेस नहीं है। माफ करके आप किसी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि जो जिसे आप माफी दे रहे हैं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके काम आगे आ सकता है किसी भी तरीके से। अगला ग्रीड जो है वो मोटिवेशन, ग्रीड से मोटिवेशन मिल सकता है, ये बात मैं मानता हूँ आज की सोसाइटी में। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्टोर करे अपने पास, इसके लिए मोटिवेशन देती है। आज के टाइम पे बात बिल्कुल सही। फियर जो है वो नेचुरल है, बिल्कुल सही बात है सर। इंसान को, हेलो, हाँ जी बोलिए। तो फियर जो है नेचुरल है, ये बात बिल्कुल सही है। और फियर सभी में होता है, और यहाँ धरती पर आकर वो उस फियर पर कितना कंट्रोल कर पाता है अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाकर या फिजिकली स्ट्रांग बनाकर, ये उसके ऊपर है। सक्सेस की जहाँ तक बात है, सफलता की, तो सफलता स्ट्रेस देकर उन लोगों के लिए ही आती है जो मेंटली वीक हों। अदरवाइज सक्सेस से स्ट्रेस का इतना नाता है नहीं मेरे साथ। बाकी मिस्टेक्स जो है इन एफिशिएंसी, अब ये लाने वाली बात हो तो मिस्टेक्स जो है इन एफिशिएंसी के कारण होती हैं, ये बात सही है। लेकिन मिस्टेक्स से गलतियां सुधारने का मौका मिलता है जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इनका रीजन तो इनएफिशिएंसी हो सकता है मिस्टेक्स का, लेकिन इनका परिणाम जो होता है वो एफिशिएंसी होता है। थैंक यू विकास जी, आपने बहुत कुछ बातें कही। अब हम लोग अगली स्लाइड पर आते हैं तो इसी से जुड़ी हुई। अब ये इक्वेशन देखें आप लोग। मनी हमारी रेस्पेक्ट का कारण है या मनी हमारे लिए नेसेसिटी है? क्योंकि बेसिक जो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, तो हमारी सोच भी उसके अनुसार बननी चाहिए। तो मनी हमारे लिए नेसेसिटी है, या पहले जैसे कहा गया मनी रेस्पेक्ट है। एंगर हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस ऑफ माइंड है? क्योंकि बहुत से लोग जब उसको एंगर को अपनी स्ट्रेंथ मान लेते हैं, बहुत सारे लोग जो लेबर क्लास के साथ डील करते हैं या बहुत से लोग जो इस प्रकार, उनका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। तो अगर एंगर हमारे लिए वीकनेस ऑफ माइंड है, अगर हमें अपने को उठाना है, क्योंकि फिर क्या है कि वो हमारा स्वभाव बन जाता है, वो फिर हम घर पे और पे सब जगह हमेशा उसी प्रकार से हम डील करते रहते हैं। फॉरगिवनेस, जैसे आपने सही बात कही, फॉरगिवनेस हमारी वीकनेस नहीं है, फॉरगिवनेस हमारी स्ट्रेंथ है और वो हमको पीस देती है। कई बार बहुत से लोगों को लगता है कि हम सबको माफ करते रहते हैं, लोग हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। तो वो हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है। ग्रीड,
ग्रीड हमको मोटिवेट नहीं करती, बल्कि वो हमारे को कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनसिक्योरिटी के कारण है, इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है। लालच हम क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ना कि कल पता नहीं क्या होगा। मोटिवेशन नहीं है, वो हमारा इनसिक्योरिटी जो हमने अपने अंदर पैदा कर रखी है वो है। फियर भी नेचुरल नहीं है, फॉल्स प्रोजेक्शन है। अभी और आगे आएगा, डिटेल में थोड़ा देखेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत बार हम देखे हैं कि जितनी चीजों के लिए हमने फियर किया होगा, मैं समझता हूँ 99% टाइम हमारे जो फियर हैं वो अनवांटेड निकले होंगे, कभी फियर पूरे नहीं हुए होंगे। और फियर हम जब फॉल्स के बारे में होप लगा के बैठते हैं बहुत सारी चीजें, तब हमारे लिए फियर होने लगता है, हम फियर करने लगते हैं। सक्सेस हमें स्ट्रेस नहीं बल्कि हमारे लिए हैप्पीनेस का कारण है। और मिस्टेक्स भी हमारी इनएफिशिएंसी नहीं बल्कि हमारी लर्निंग है। मिस्टेक को हमें लर्निंग के तौर पर लेना चाहिए और उससे लर्न करके हमें आगे परफॉर्म करना चाहिए। तो वही इक्वेशन को हमने जब रिफ्रेम कर दिया तो हमारे लिए वो एक कन्विक्शन का आधार बन जाएगा एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म अवरसेल्फ। Do what you love, love what you do. With the right equation in mind, we now need to take the right actions based on our Swadharma. I think I will skip video today, but मैं चलिए एक वीडियो तो दिखा देता हूं अभी। Love what you do. कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था कि हम लोगों को वो काम करना चाहिए जिसमें हमारे को अच्छा लगता है, और जो काम हम करें उसको हमें प्रेम पूर्वक अच्छे से करना चाहिए। एक गुरुदेव का वर्क है, व्हाट शुड बी अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, वो दिखाता हूं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और तीन मिनट का है, बहुत बड़ा नहीं है, देख सकते हैं हम लोग। तदर्थम कर्म कौंतेय, हे कौंतेय कुंती का बेटे, सन ऑफ कुंती, तदर्थम यज्ञार्थम, फॉर दिस इन द स्पिरिट ऑफ यज्ञ, एज अ वर्शिप, कर्म कौंतेय कुरु, do all your activities in that spirit of worship. The moment I have got a feeling that I am teaching you all, sure enough, I am going to be disappointed. Why? Then I will expect that you all must be grateful to me. You must appreciate me. And then I find that you rascals don't appreciate, and you say that fellow 4 hours a day, he is unnecessarily talking. My bottom is burning now. I can't sit down. You understand? And when I hear that, I feel wounded. None of these things will happen if I am doing it. My beloved Lord who is in my heart is the same Lord that is bumping in every one of you. So all of you are different forms of my beloved Lord. I am telling the glories of the Lord to the Lord himself. When I have no ego or any selfish expectation that you will worship me, or you will, you will reward me, or you will applaud me. I have no such even. On the other hand, I feel grateful that if you all were not here in Krishnalaya, do you think that I will sit down 4 hours for the sake of video and talk? No. Because you are here, I am talking. Therefore I am grateful to you that you are making me talk of the glories of the Lord. Whenever you act in the world outside, wherever you are acting,
If this is the attitude with which you are working in the world outside, there will be no karma bandhan, no shackles upon your personality. It will never create any mental inhibition. And when you are thus doing it, mukta sangha, without attachment. Something like 82 times this word comes in the whole Gita. Without attachment, without attachment. That is why in the very first time when the word came, I paused and elaborately explained. Attachment means I plus I want. Mukta Sangha, without this idea of I and I want, selfish desire, without these two. Samachara. And don't say that this is a voluntary work, Swamiji, I will somehow or other do it. Somehow or other do it. Then you get out. Samachara. Do it as perfectly as you can. Each day is a competition between yourself and your yesterday's performance to improve upon it. Because what you are doing is serving Him. Samachara. Do it excellently. So friends, we should make our own yardstick, compete with our own self. The present day, every day should be better than the previous day. As you must have noted in Gurudev's talk, what should be the attitude that we should do if we can dedicate our work? There is a saying that an altar in life alters your life. Great saying, and a small booklet also of Swami Tejavanand Ji, titled An Altar in Life, A-L-T-A-R. In life alters your life, A-L-T-E-R-S. Both are same, A-L-T-A-R and A-L-T-E-R. But when you dedicate something, like our freedom fighters, like our martyrs, soldiers, when they dedicate themselves for the country, then they achieve marvelous things. आज एक सैनिक सिपाही जब देश के लिए लड़ाई लड़ता है तो कोई पगार के लिए, कोई 10-20 हजार 25 हजार की तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता. जब वो देश के लिए लड़ता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है. देश उसका ऑल्टर है. वैसे ही हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में एक ऑल्टर लेकर के काम करना चाहिए कि ऑल्टर हमारे लिए हम उसको डेडिकेट करें. हम टीचिंग लाइन में हैं तो जो हमारे सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हम देश के लिए उनको तैयार कर सकते हैं. आज की तारीख में हम केवल उनको क्या पैसा कमाने की एक मशीन बना करके भेज रहे हैं या एक जिम्मेदार नागरिक बना करके हम उनको देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. उनकी लाइफ में हम कैसे बदलाव लाएं कि वो देश के लिए एक सकारात्मक भूमिका अपने जीविकोपार्जन के साथ में वर्कर बन करके एक देश के लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकें. एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक शिक्षक के नाते से हम सबके ऊपर. जो बात आई, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, फॉलो योर स्वधर्मा. स्वधर्म क्या है? एक हम ऐसी 5 चीजों की लिस्ट बनाएं जो हमें जीवन में प्राप्त करनी है. हो सकता है आज हम उसको प्राप्त ना कर पा रहे हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड हम कर सकते हैं. नाउ रिप्लेस आई वांट टू विद आई विल. और व्हाट इज स्टैंडिंग इन द वे, उसके लिए क्या बाधक है उसको हमें ध्यान में रख करके लव व्हाट यू डू, व्हाट यू डू व्हाट यू लव. हो सकता है कोई टीचर बहुत अच्छा म्यूजिशियन रहा हो, बहुत अच्छा उसको वाद्य बजाने का शौक है, लेकिन बहुत दिनों से घर में पड़ी धूल खा रही होंगी. लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे प्रोफेशन के भी इस 2 महीने के अंदर कहीं किसी का कैशियो निकल गया, कहीं किसी की पेंटिंग स्किल बहुत अच्छी थी वो चालू हो गई, पेंटिंग करना. इसको कहते हैं स्वधर्म. आज हम व्यवसाय के कारण से अपने स्वधर्म में नहीं लग पा रहे होंगे, लेकिन समय पाने पर हम अपने को उस विधा में एक्सेल कर सकते हैं. जैसे कि एक फिश, मछली, जस्ट लाइक फिश इज मोस्ट एफिशिएंट इन वाटर, we are also most efficient doing our Swadharma. But till we find Swadharma, we must learn to do our activities as efficiently as we can.
आज हो सकता है कि मजबूरी के कारण या हमें जो कार्य मिला है वो हमारे स्वधर्म से मेल न खा रहा हो, लेकिन हम उसी काम में अपना स्वधर्म ढूंढ सकते हैं क्या? पहली चीज, नहीं ढूंढ सकते तो भी हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से करते हुए अपने स्वधर्म की दृष्टि से अपने स्वधर्म में लगते जाएं। नेक्स्ट कम जैसी बात कही गई, एक फियर हमको कहीं ना कहीं हमें रोकता है। फियर किस बात का होता है? कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। द फियर ऑफ टेकिंग रिस्क प्रिवेंट्स अस फ्रॉम फॉलोइंग अवर हार्ट। फियर ऑफ फेल्योर prevents us from trying anything new. Fear of the unknown keeps us chained to our comfort zone. और वास्तव में फियर क्या है? फियर का एक अर्थ तो यह है फीलिंग एवर एट रिस्क, और दूसरा जो फियर का एक मिला हमें, फॉल्स इमोशंस अपीयर रियल। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि 90% टाइम हमें जो है 99% चीजें हमारे को जो हमने डर लगता होगा, हमने वो डर हमें निकालना होगा। किस बात का डर? भविष्य के अनिश्चित उसका डर हमें। आज की तारीख में भी हम कल क्या होगा, कल क्या होगा। आज का जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, रोज यही प्रश्न होता है कि आज कितनी संख्या हो गई, कल क्या होगा। कल क्या होगा? जो होगा अच्छा होगा। एक तो ये सिद्धांत हमें जीवन में उतारना चाहिए कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, और कल का जो हमारा भय था वो आज कहना चाहिए एक प्रकार से सफल नहीं हुआ, वैसे ही आगे भी ये सफल नहीं होगा। इसलिए हमें फियर से निजात पानी चाहिए। अब जरा देखें हम लोग डिफरेंट स्टेजेस में हमारे कितने तरीके के फियर्स रहते थे। स्कूल लाइफ में, स्विमिंग में, एग्जाम्स के टाइम में, पीयर प्रेशर, पब्लिक स्पीकिंग, स्पोर्ट्स, हर समय अलग अलग तरीके के फियर। जब पहली बार मंच के सामने अगर माइक के सामने बोलना पड़े तो एक अलग तरीके का फियर हम फेस करते हैं। तो डिफरेंट फियर। लेकिन जरा हम विचार करें, जितने भी फियर थे हमारे सामने, क्या वो टिके रहे? और एक बात और आती है कि फियर दो प्रकार के होते हैं, गीता में भी आया, योग और क्षेम। योग मतलब जो नहीं है उसको पाने की चिंता करना, और क्षेम मतलब जो है उसको बचाए रखने की चिंता करना, कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात की चिंता करना। जरा सोच के देखिएगा, हमारी सारी चिंताएं इन दो चीजों में है, योग और क्षेम। और गीता में भगवान ने दोनों के लिए ही हमें वचन दिया है कि हम आपके योग और क्षेम दोनों की चिंता करेंगे। LIC के योग क्षेम का हम भरोसा करते हैं, जरा भगवान के योग क्षेम का भी हम भरोसा करके देखें तो शायद हमारा डर कुछ कम हो जाएगा। इसको पढ़ें जरा एक बार ऊपर से नीचे तक। फियर आई जस्ट कैन नॉट हैंडल इट। Everyone says it is an opportunity, but I know it may not be easy for me. If it is too difficult, what will I do? अब जरा नीचे से पढ़िए इसी को। What will I do if it is too difficult? It may not be easy for me, but I know it is an opportunity. Everyone says handle it. I just cannot fear. Same lines. परसेप्शन बदल गया, हमारी सोच बदल गई। हमारे को परसेप्शन बदलने की जरूरत है, और वो परसेप्शन बदलेगा कैसे? जब हमारे पास फेथ होगा और नॉलेज होगी। उस फेथ और नॉलेज के बल पर हम अपने परसेप्शन को बदल सकते हैं। Made us fearful makes us now cheerful. We are now ready to handle it. अब आते हैं हम लोग, आस्क ट्रायंगल क्या है जो हमारे फियर को दूर करने में सहायक होगा। वन इज एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। ये ट्रायंगल से हमारी फेथ और नॉलेज बढ़ेगी। पहली चीज तो जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने कहा प्रॉब्लम नहीं होती, सिचुएशन आती है, वी शुड लुक एट दैट विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड देन विद द स्किल एंड विद द नॉलेज वी कैन ओवरकम all our fears, all type of fears, and the most important thing is we must have an attitude of acceptance. Whatever we get in life, we should accept it. The problem arises because we are not ready to accept what comes in our life, whether good or bad. रामायण हम लोग पढ़ते होंगे, रामायण में चौपाई आती है, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा।
क्या हुआ, नारद जी ने क्या किया, नारद जी को बंदर बना दिया भगवान ने, उनकी इसी चौपाई के परिणाम स्वरूप। लेकिन हमारे जीवन में जब कभी बाधाएं आती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये, बहुत बार हम देखते हैं कि ये हमारे हित में हुआ, शायद ये उस समय नहीं होता तो हमारे लिए आज बड़ी समस्याएं होती। जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है। समय कम है, मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जरा सोच के देखिए, बहुत बार ऐसी घटनाएं पढ़ने को आती हैं कि बस छूट गई, कि लेकिन लगा कि उस समय तो लगा कि बड़ा बुरा हुआ, हमारी बस छूट गई, लेकिन बाद में समझ में आया कि वही बस आगे जाके कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तब लगता है कि तो हमारे लिए बहुत हितकर हुआ। जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं और फिर समझ में आता है कि शायद काश उस समय, अगर हम उस समय तो हमें बहुत गुस्सा आया, बहुत परेशान हुए हम कि अरे ऐसा क्यों हो गया, लेकिन बाद में दिखता है कि उसमें ही हमारी भलाई थी। एक राजा और उसके वजीर की कहानी हमने सुनी होगी, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, कि जंगल में उनकी उंगली कट गई, फिर वजीर की भी राजा को ले गए, वजीर को उसने बंद कर दिया था राजा ने। तो राजा ने कहा भाई तुमको क्या हुआ, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? बोला अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि हो जाती। वो हर बात में यही कहता था, जो भी होगा अच्छा होगा। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें व्हाट डू वी हैव नीड फेथ ऑन, सबसे पहले किस किस चीज पर हमें फेथ रखना चाहिए? अपने ऊपर, अपने आसपास की चीजों के ऊपर, और बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। हमें इन वन सेल्फ, व्हाट डू वी नीड फेथ ऑन? सबसे पहला है हमें अपने ऊपर विश्वास। वी कैन डू इट, वी मस्ट डू इट। फिर आसपास की चीजों में और लोगों में विश्वास, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर ये है कि हमारे अंदर अविश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर आपके पास विश्वास नहीं होगा तो आप प्लेन में बैठ के नहीं जा सकते। अगर आप अविश्वास करने लगे कि ये जो पायलट है ये हमें सही से पहुंचाएगा कि नहीं, पायलट कॉम्पिटेंट है कि नहीं, अगर जहां आपने जरा सा भी डाउट किया तो विश्वास, फेथ से दुनिया चलती है। इसलिए हमें फेथ बढ़ाना पड़ेगा अपने अंदर, इन थिंग्स एंड बीइंग्स, इन यूनिवर्सल लॉज की प्रकृति के अंदर जो भी हो रहा है वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है, मंगल करने के लिए हो रहा है। और जो क्रिएटर है, जो नियंता है, जो विश्व के नियंता है, उनके अंदर हमें विश्वास करना पड़ेगा। और फेथ का मतलब है फाइंडिंग एन आइडियल टू होल्ड। जैसे मैंने पहले भी कहा, एन ऑल्टर इन लाइफ ऑल्टर्स योर लाइफ। तो फाइंडिंग एन आइडियल टू होल्ड, वी मस्ट हैव समथिंग टू होल्ड ऑन। अगर हम कोई चीज होल्ड करने के लिए अपने जीवन में नहीं पाते, चाहे भगवान का सहारा हो या कोई और सहारा हो, तो हम टूट जाते हैं कई बार विषम परिस्थितियों। इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक अपना श्रद्धा का केंद्र बना के रखना चाहिए। एक बार शायद डॉक्टर त्रेहन को टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था, बहुत पुरानी बात हो गई। उन्होंने कहा कि आज की समस्या का कारण ही यही है कि पहले लोग विश्वास करते थे, आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं विश्वास कम हुआ है, जिसके कारण लोगों में डिप्रेशन, जरा सी कोई समस्या आती है डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं रहा, कहीं ना कहीं कमी आ रही है। इसलिए वी मस्ट फाइंड एन आइडियल टू होल्ड, चाहे वो भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे टीचर हो, चाहे घर का कोई व्यक्ति हो, हमें उसको होल्ड करना चाहिए, एक आइडियल को पकड़ के रखना चाहिए कि हम कुछ भी हो जाए, हम अपने इस आइडियल से नहीं टिकेंगे। नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए हम गिरने लगते हैं। फिर जो हमने कहा था बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसको हम लोगों को QD मॉडल से इंटीग्रेट करना चाहिए। कैसे? improve the quality, reduce the quantity and change the direction. What is it? Improving quality by reducing selfishness, reducing quantity by focusing on altar of dedication, change the direction towards knowing ourselves better. Control, Alt, Delete. Can you tell a dancer by profession who did not give up her passion? Although her leg was broken, she danced and surprised the nation. Her physical disability did not hamper her growth, as she had integrated her mind and intellect both
Guess who? Sudha Chandran. Sudha Chandran, very well. Then a successful chef in a famous hotel was selected to go abroad and settle. He gave up his lucrative job one day to feed the homeless in Madurai. His Akshay home feeds 425 people every day. As his mind was driven by compassion, his body and my intellect had to obey. Guess who? Anybody knowing about him? He was Narayanan Krishnan. He was having some challenge at mind level, so he did all these things and he started doing this business. Then, driven by ideology of unconditional independence, he led an army of prisoners of war and plantation workers who were Indian. His on to Delhi, Delhi Chalo was a motivational call. His intellectual conviction made him place his nation above himself, above all. Guess who? Subhash Chandra Bose. Yeah? Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose. And the last is, see, the ability to withstand any challenge in life, the capacity to think clearly in the midst of any strife, the purity of mind to serve successfully, all integrated in the person beautifully. Guess who? Any guess? The ability to withstand any challenge in life, the capacity to think clearly in the midst of any strife, the purity of mind to serve successfully, all integrated in this person. Beautify, guess who? I think we all. We all, very well, very well. So it is you. You have the capacity to do all these things. After listening to this, I am sure that many of us will be able to face this. It is you. Now coming. Very inspiring. Is there a difference between ego and self-respect? What is ego and what is self-respect? Let us say, see, person with ego is I-centric. मैंने किया. Never give credit to others. Puts down others. Insecure. Is always stressed, wanting to prove heights limitation, averse to criticism. But on the other hand, person with self-respect is task-centric, encourages others, secure, is always satisfied, wanting to improve, overcomes limitations, accepts criticism. So, we should turn from person with ego to person with self-respect, that is endless ego, to ego lessened. To improve our life and improve our selfie, we should move ahead from person with ego to the person with self-respect. Now see, किसके पास i7 कैमरा है, जरा फोटो लेने हैं सब लोग अपनी अपनी पढ़ने के बाद. I improve communication skills, inculcate positive thoughts, identify personal strengths, increase faith and knowledge, involve in the work in hand, integrate one's personality, instill confidence always. Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. अब्दुल कलाम का एक कोट और है, मैं भूल रहा हूँ, फेल्योर के ऊपर, कि हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है या हमें लर्निंग मिलती है, इस तरीके का कोट है. तो नाउ आफ्टर ऑल दिस इज सेल्फ गवर्नमेंट, by the self, of the self, for the self. Now with this eye, we can take our selfie with i7 mobile phone. So this is the summary which we have discussed so far, and now I think this is one. Can I, must I, will I. These are definite words, will ultimate weaken. My self-confidence, well, my heart says that there should be a way out. I don't need someone to tell because I know pretty well, yes, I am probably in my shell. The solution lies within me.
Presently, what can I not? I don't really see. Will I be able to say one fine day with firm conviction these motivational words, I can, I must, I will. Success is a tribute that life pays to excellence, quote by Swami Chinmayananda. And there is a one book also by our Pujya Gurudev Swami Chinmayananji titled We Must. We can get it from Chinmaya Mission online also. The book titled We Must. In our life also, we should not doubt our own capability and we should always say, we can, we must. This is the title. I can, I must, I will, I do. This is, with this, I think I come to an end. This is a just outside the box octopus. Now we are confident we can take our selfie from all our angles, all different angles. And I think we come to an end. Believe in yourself. Thank you. And now it is 11:45. If you all have a time, I can share one video. क्यों मैडम ज्योति जी? एक अरुणिमा सिन्हा का, I think it is an interview. I think you can see later. You may find it out and see. So we can conclude here. With this, जी sir. my presentation is over. So I stop this sharing and we hand over to Jyoti madam for further proceeding. Thank you, friends. Thank you, sir. The presentation has been spellbounding. I have absolutely no words left for appreciation. Actually, मुझे ऐसे लगता है आज कि आपका लेक्चर ऐसे था जैसे एक पात्र में, अब जितना बड़ा हमारा पात्र है उतना ही हम सब इसको ग्रहण कर पाए होंगे. It is for every one of us to see how well we have imbibed whatever you have, whether it is BMI or Just Do It, whether it is from Poor Me to It's Up to Me. There were so many small bits of inspiration at every slide. I really, it's a little bit of difficulty today to have asked you to shorten the lecture because of an important webinar meeting with the Shasan. Otherwise, we might have continued a little more. But as it is, sir, I would request Dr. Rakesh Jain, a very senior faculty member from my college, and the head of the Department of English, to propose a vote of thanks. Dr. Rakesh Jain. Dr. Rakesh Jain. I see perhaps he is not here. All right. And nonetheless, it has been an excellent session, sir. We would be looking forward. हम किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेकिन अगर हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, अगर वो इंटेलेक्ट, अगर वो कंपैशन, अगर वो एम्पैथी, अगर वो दूसरे के प्रति हमारी जागरूकता, हमारे दूसरे के प्रति हमारा धैर्य और स्वयं के प्रति, we often tend not to forgive ourselves only. तो अगर वो स्वयं के प्रति हमारी ऐसी भावना ना हो तो हमारा जीवन कठिन हो, भले ही हम कितने ही अच्छे सब्जेक्ट के वक्ता ही क्यों ना हो, भले ही हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को क्यों ना समझ रहे हो, वो इनर पीस के साथ कॉन्सोनेंस में आना बहुत ही जरूरी है. आज इस लेक्चर से ये बात मुझे बहुत ही क्लियर हुई और मैं आपकी बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि हम लोगों ने इस लेक्चर को इतना ध्यानपूर्वक सुना. I am also indebted to the management and my principal who have given me this opportunity. And last but not the least, गुलदस्ता पूरा फूलों के तमाम अलग अलग रंगों से और तमाम अलग अलग उनके भिन्न बातों से बनता है. मेरे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आज साथ में जुड़ करके इसका लाभान्वित हुए होंगे, तो मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ ये 2 दिन का उन्होंने वेबिनार अटेंड किया.
Thank you so much, everyone. And hopefully we will again meet sometime. एक इंफॉर्मेशन मैं और शेयर कर दूं, फेसबुक के ऊपर आप लोग स्वामी स्वरूपानंद अगर सर्च करेंगे तो रोज शाम को 5 बजे से 15 मिनट की उनकी लाइफ मैनेजमेंट पे टॉक आ रही हैं। 3 दिन आ चुकी हैं, जिसमें सौरो, फाइनेंस एंड स्ट्रेस, और आज का मुझे नहीं मालूम, 2 दिन अभी और हैं, लेकिन वो पुराने वाले भी फेसबुक लाइव पे अवेलेबल है। अभी अंग्रेजी में चल रहा है, उसके बाद हिंदी में 5 दिन का इसी प्रकार उनका चलेगा। जो लोग चाहें, ये केवल 15 मिनट की उनकी वो टॉक रहती है और बहुत ही पॉइंटेड और कैप्सूल फॉर्म में, जो भी सुनना चाहें उसमें सुन सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। So thank you, sir, and thank you all. It has been a very enlightening session, and हम लोग इस उम्मीद से कि दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी। I wish you everyone all the best. Thank you. धन्यवाद। Thank you everybody for giving me this opportunity. Thank you, sir. धन्यवाद सर। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day all. Thank you, sir.